Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. This is part 2 of chronic myeloid leukemia, and this is me, Muhammad Asif Zaid, and I am working as a lecturer at Institute of Paramedical Sciences, Heber Medical University. Dear viewers, we have discussed previously about chronic myeloid leukemia. That chronic myeloid leukemia is one of the myeloproliferative disorder, which is basically a clonal disorder in which there is marked leukocytosis in the peripheral smear and as well as in the bone marrow, and there is thrombocytopenia and absolute basophilia, and the most important thing is the presence of BCR-ABL fusion gene. And after that we discussed that there are certain types of myeloproliferative disorder like CML, myelofibrosis, polycythemia rubra vera, and essential thrombocythemia. Then we discussed that what are the various other types of chronic myeloid leukemia. And after that we discussed that there are three phases of chronic myeloid leukemia, that is chronic phase, accelerated phase, and blast crisis. In chronic phase, the number of blasts in bone marrow is less than 10%, while in accelerated phase the blast percent is 10 to 19%, while in accelerated phase in blast crisis the percentage of blast was more than 20%. According to WHO, if there is more than 20% blast present in bone marrow, so we type that leukemia as acute leukemia. So blast crisis is basically a type of transform CML into acute leukemia. Then we also discussed that the CML may be transformed into either acute myeloid leukemia or acute lymphoid leukemia, and the basic reason was behind that there is some additional chromosomal abnormalities in CML. That's why CML is transformed into either acute myeloid leukemia or acute lymphoid leukemia. We also discussed in the previous lecture that CML, polycythemia rubra vera, ET, and essential thrombocythemia can also be evolved into each other, but the percentage or occurrence is too low. But the main common thing is that these four types of myeloproliferative disorder can be transformed into acute leukemias. So today we will discuss about pathophysiology of chronic myeloid leukemia. We can see in this picture, and we know that each cell have 23 pairs of chromosome, like 1, 2, 3 to 21, 22, and this is X and Y chromosome. Just remember that chromosome number 1 is the largest chromosome, and after that chromosome number 2, chromosome number 3, and chromosome number 4, 5, and so on. So this is the largest, while chromosome number 22 is the smallest chromosome. Now what happened, that this is chromosome number 9 and this is chromosome number 22. On chromosome number 9 there is a proto-oncogene present, and this proto-oncogene is known as ABL or Abelson gene. ये प्रोटोऑन्कोजीन बेसिकली एक एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं जिसको कहते हैं टायरोसिन काइनेज. टायरोसिन काइनेज नॉर्मली सेल की प्रोलिफरेशन में रोल प्ले करती हैं. क्रोमोसोम नंबर 2 पे यहाँ पर एक और जीन मौजूद है जिसको हम कहते हैं BCR जीन और ब्रेक क्लस्टर रीजन हम इसको कहते हैं. अब सीएमएल में क्या होता है कि सीएमएल में रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होती है. प्रीवियस लेक्चर में एक्यूट ल्यूकीमिया की जब एटियोलॉजी में हमने पढ़ा था कि रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन ये है कि एक क्रोमोसोम का एक पार्ट दूसरे क्रोमोसोम पे और दूसरे क्रोमोसोम का पार्ट उसी क्रोमोसोम पे जब आ जाए तो हम इसको कहते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, और बैलेंस ट्रांसलोकेशन भी हम इसको कहते हैं. अगर सिर्फ इस
क्रोमोसोम का पार्ट यहां पर चला जाए और इसका पार्ट यहां पर ना आए तो इसको हम रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन नहीं कहते और इसको हम बैलेंस ट्रांसलोकेशन नहीं कहते। ना फीमेल में होता क्या है कि फीमेल में नॉर्मली भी एबीएल जो टायरोसिन काइनेज प्रोड्यूस करती है उसका मॉलिक्यूलर वेट 185 किलो डेल्टन होता है। अब फीमेल में ड्यू टू सर्टन causes like chemicals like radiations, इनकी वजह से ये एबीएल इसका ये पोर्शन कट के यहां पर आ जाता है और ये बीसीआर का जो नीचे वाला पोर्शन है ये कट के यहां पर आ जाता है। अब अगर हम ये देखें कि बीसीआर के नीचे जो क्रोमोसोम का पार्ट है दिस इज बेसिकली लेंथी एज कंपेयर टू दिस एबीएल। बेसिल छोटा है, इसलिए जब ये पार्ट कट के यहां पर आ जाता है और ये पार्ट कट के यहां पर आ जाता है तो ये जो पार्ट है चूंकि लेंथी है इसलिए क्रोमोसोम नंबर 9 जो है ये साइज में लेंथी हो जाएगा और भी साइज में लेंथी हो जाएगा लाइक दिस वन। अब क्रोमोसोम नंबर 9 साइज में और भी लेंथी हो गया, जबकि क्रोमोसोम नंबर 22 जो है वो साइज में और भी छोटा हो गया। Now this smaller chromosome number 22 is known as Philadelphia chromosome because this chromosome was discovered in Philadelphia first time. That's why they called it as Philadelphia chromosome. This chromosome number 22, as it is smaller in size, that's why it is known as Philadelphia chromosome. Now जो BCR है और ABL है यहां पर इसने फ्यूजन बना दिया तो इसलिए हम इसको कहते हैं BCR ABL फ्यूजन जीन। अब ये एक जीन के तौर पर काम करता है इसलिए हम इसको कहते हैं कि दिस फ्यूजन जीन विल एक्ट लाइक अ सिंगल जीन और प्रोटोऑन्कोजीन इज नाउ कन्वर्टेड इनटू ऑन्कोजीन एंड ऑन्कोजीन इज कैंसर प्रोड्यूसिंग जीन। Now what happened that BCR-ABL fusion gene will produce a tyrosine kinase। जैसे हमने नॉर्मली कहा कि ABL प्रोड्यूस करता है टायरोसिन काइनेज, अब ये फ्यूजन जीन जो है जो कि BCR-ABL फ्यूजन जीन है ये भी टायरोसिन काइनेज प्रोड्यूस करती है। नॉर्मली जो ABL टायरोसिन काइनेज प्रोड्यूस कर रही थी उसका मॉलिक्यूलर वेट था 185 किलो डेल्टन, बट इन फीमेल केस the molecular weight of this tyrosine kinase is 210 and some book also refer that the molecular weight of tyrosine kinase is 214. So चूंकि molecular weight अब इसका ज्यादा है टायरोसिन काइनेज ज्यादा एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। नॉर्मली हमने कहा कि टायरोसिन काइनेज बेसिकली इंक्रीज द प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल। अब चूंकि टायरोसिन काइनेज का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो इसलिए ये सेल की प्रोलिफरेशन को और भी इंक्रीज कर देगा, 10 टाइम्स मोर प्रोलिफरेशन एज कंपेयर टू नॉर्मल टायरोसिन काइनेज। सो इसलिए फीमेल के केसेस में जो माइलाइट सीरीज है उसकी प्रोलिफरेशन डबल हो जाती है, बल्कि 10 टाइम्स ज्यादा हो जाती है, इसलिए मार्क्ड ल्यूकोसाइटोसिस होती है फीमेल में। फीमेल में जस्ट रिमेंबर कि फीमेल में जो टीएलसी का काउंट है नॉर्मली जब भी पेशेंट क्रॉनिक फेज में आते हैं तो मोर देन 60,000 उसके टीएलसी काउंट होता है। टीएलसी मोर देन 60,000, इवन 5 लाख तक भी टीएलसी का काउंट पहुंच सकता है। इस और क्यों? बिकॉज ऑफ द high molecular weight tyrosine kinase produced by BCR-ABL fusion gene. Another thing which is most important and which is related to Philadelphia chromosome, that Philadelphia chromosome is 98% positive in female cases while 2% negative in case of female. Philadelphia chromosome is also positive in some cases of acute leukemia and especially acute lymphoblastic leukemia mostly और इसकी परसेंटेज भी 2% है। अगर वो पेशेंट जिसमें फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम
पॉजिटिव होता है उसकी प्रोग्नोसिस गुड होती है एज कंपेयर टू फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम नेगेटिव पेशेंट में। लेकिन एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के केसेस में अगर फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पॉजिटिव है तो उसकी प्रोग्नोसिस बहुत ही बैड होती है। नाउ हाउ वी कैन डायग्नोज पेशेंट विद CML। तो CML के पेशेंट के लिए ये टेस्ट होते हैं मोस्टली CBC, बायोकेमिकल टेस्ट, बोन मैरो, इम्यूनोलॉजिकल मार्कर्स, साइटोजेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर एसे। मोस्टली पेशेंट जब भी आता है तो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि मोस्टली जब भी पेशेंट आता है तो मोस्टली क्रोनिक फेज में आता है। तो इसलिए डॉक्टर के पास जब भी पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसका वेट लॉस, कंटिन्यूसली वेट लॉस हो रहा है, नाइट स्वेटिंग, फीवर, तो इसके साथ आता है तो पेशेंट डॉक्टर उसको सबसे पहले CBC सजेस्ट करता है। फिर इसके बाद और भी बायोकेमिकल टेस्ट, ऑल्दो कि CBC इज द इनिशियल टेस्ट, फिर इसके बाद पेरिफेरल स्मेयर, फिर इसके बाद बोन मैरो बेस्ड ऑन CBC रिपोर्ट। सो CBC में क्या होता है कि TLC काउंट ज्यादा होता है, 50,000 टू 5 lakhs तक काउंट होता है, जबकि प्लेटेड काउंट मोस्टली इंक्रीज होता है CML के पेशेंट में जब वो क्रोनिक फेज में आता है। जस्ट रिमेंबर अनदर थिंग कि जब भी हम लैब इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं CML में तो मोस्टली हम क्रोनिक फेज में मोस्टली इसकी जो लैब डायग्नोसिस है CBC है वो मोस्टली हम क्रोनिक फेज वाला ही देते हैं, क्योंकि 85% जो पेशेंट्स होते हैं वो मोस्टली क्रोनिक फेज में आते हैं। तो इसलिए ये क्रोनिक फेज के काउंट्स हैं। जैसे हमने कहा कि एक्सेलरेटेड फेज में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है जबकि क्रोनिक फेज में थ्रोम्बोसाइटोसिस होती है। इसी तरह न्यूट्रोफिल शो लिफ्ट शिफ्ट। लिफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है? लिफ्ट शिफ्ट का मतलब यह है कि इसमें बैंड, मेटामाइलोसाइट, प्रोमाइलोसाइट और ब्लास्ट आते हैं। जब ब्लास्ट तक बात पहुंचती है तो हम इसको कहते हैं कंप्लीट लिफ्ट शिफ्ट, लेकिन अगर ब्लास्ट नजर नहीं आते तो हम इसको कहते हैं इनकम्प्लीट शिफ्ट। यानी अगर माइलोसाइट तक पेरिफेरल स्मेयर में हमें ग्रेनुलोसाइट नजर आ रहे हैं तो हम इसको कहते हैं इनकम्प्लीट लिफ्ट शिफ्ट। तो CML में कंप्लीट लिफ्ट शिफ्ट होता है। इसी तरह इसिनोफिल नॉर्मल और समटाइम इट मे बी इंक्रीज्ड। इन RBCs are almost usually present in case of CML and absolute basophilia which is the characteristic of chronic myeloid leukemia। इसी तरह मॉडरेट थ्रोम्बोसाइटोसिस जैसे हमने कहा और मैक्रोसाइटोसिस मोस्टली पेशेंट में होती है, और वो इसीलिए क्योंकि ज्यादा सेल की प्रोलिफरेशन होती है तो ज्यादा DNA रिक्वायर्ड होगा। जब ज्यादा DNA रिक्वायर्ड होगा और पेशेंट अगर प्रॉपरली उसकी विटामिन B12 और फोलिक एसिड इनबैलेंस आ जाती है तो इसलिए उसमें मैक्रोसाइटोसिस आ जाती है। एंड हाइपोग्रेनुलेशन इन माइलाइट सीरीज, जबकि इस आगे हम डिस्कस करेंगे लिकामाइड रिएक्शन में उसमें टॉक्सिक ग्रेनुलेशन होती है, लेकिन CML के केसेस में हाइपोग्रेनुलेशन होती है। अब ये एक पेरिफेरल स्मेयर है CML का। अगर इसमें हम देखें कि ये न्यूट्रोफिल है, ये न्यूट्रोफिल है। मॉर्फोलॉजी पे मैंने एक लेक्चर तैयार की है और वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है मॉर्फोलॉजी के लिए, जिसमें हमने जितने भी ल्यूकोसाइट्स हैं उनको डिस्कस किया है। तो ये न्यूट्रोफिल, दिस इज माइलोसाइट, दिस इज माइलोसाइट, दिस सेल इज बेसिकली माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट के दरमियान भी डिफरेंशिएशन मैंने दी है और वो भी ल्यूकीमिया में हमने डिस्कस की है इसको। तो दिस इज माइलोब्लास्ट। इसी तरह दिस इज न्यूट्रोफिल, 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 मेटामाइलोसाइट। तो अगर हम इसमें देखें कि इसमें मेजॉरिटी जो सेल्स हमें नजर आ रहे हैं वो न्यूट्रोफिल और माइलोसाइट हैं, जबकि ब्लास्ट हमें सिर्फ और सिर्फ एक नजर आ रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली ए केस ऑफ क्रोनिक फेज, CML इन क्रोनिक फेज।
तो चूंकि इसमें सिर्फ दो सेल हमें सेल लाइन ज्यादा नजर आ रही है, न्यूट्रोफिल और माइलोसाइट, तो इसलिए हम इसको कहते हैं बाई मॉडल पीक। मतलब अगर हम ग्राफ बना दें तो इसमें दो जो पीक होंगे वो इंक्रीज होंगे, एक माइलोसाइट का और दूसरा न्यूट्रोफिल का। तो इसलिए हम इसको कहते हैं बाई मॉडल पीक, जो कि सीएमएल में हमें नजर आता है, ल्यूकेमाइड रिएक्शन में नजर नहीं आता। बोन मेरो ऑलमोस्ट हाइपरसेल्युलर और इन रेशियो जो है वो 10 to 1% है, मीन्स 10% माइलाइड सीरीज और 1% 1 रेशो एरिथ्राइड सीरीज है, जबकि नॉर्मल ये रेशो 3:1 है। इसी तरह न्यूट्रोफिल न्यूप्लास्टिक माइलाइड सीरीज, मैच्योर न्यूप्लास्टिक माइलाइड सीरीज, एरिथ्राइड प्रिकर्सर डिक्रीज होंगे, मेगाकेरोसाइट नॉर्मल आर इंक्रीज। क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोसिस है इसलिए मोस्टली इन केस ऑफ फीमेल मेगाकेरोब्लास्ट जो है वो नॉर्मल से इंक्रीज होते हैं मेजोरिटी के केसेस में। इसी तरह ब्लास्ट नॉट मोर देन 10% इन क्रॉनिक फेज, eosinophil and basophil granulocytes are abnormal and nuclear to cytoplasmic asynchrony, जो कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में भी पाया जाता है कि न्यूक्लियस जो है वो मैच्योर नहीं हो रहा जबकि साइटोप्लाज्म मैच्योर हो रहा है। क्योंकि न्यूक्लियस इसलिए मैच्योर नहीं हो रहा क्योंकि वहां पर विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डिफिशियंसी आ जाती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्रोलिफरेशन। यहाँ पर एक और चीज जो कि मेंशन हुई है कि इमेच्योर माइलाइड प्रिकर्सर कैन बी फाउंड अवे फ्रॉम दी बोनी ट्रबिकुलाई। बोन मेरो में हर सेल की अपनी अपनी स्पेसिफिक पोजीशन होती है, जो कि माइलाइड सीरीज चूंकि ट्रबिकुलाई के करीब करीब होते हैं, इसलिए चूंकि माइलाइड सीरीज की प्रोलिफरेशन इंक्रीज होती है इसलिए वो ट्रबिकुलाई से भी हटकर चले जाते हैं और इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं। Now some biochemical findings which is mostly raised in case of female. So what are their findings? And these findings are that serum uric acid is increased in patients of chronic myeloid leukemia. In serum uric acid because there is increased proliferation, so increased cell destruction may be found, and due to increased destruction, increased DNA will be extracted from the cell. और यूरिक एसिड चूंकि DNA से ही बनता है इसीलिए यूरिक एसिड इंक्रीज होता है, सीरम यूरिक एसिड, तो इसलिए पेशेंट्स को बोनी पेन भी होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज यूरिक एसिड। और गाउट लाइक सिम्टम्स भी पेशेंट्स को आते हैं। सीरम आयरन इंक्रीज एंड सीरम विटामिन B12 एंड विटामिन B12 बाइंडिंग कैपेसिटी। विटामिन B12 बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है लेकिन सीरम विटामिन B12 यूजुअली डिक्रीज होता है। नेब स्कोर न्यूट्रोफिलिक अल्कलाइन फास्फेटेज स्कोर ये सीमेल में डिक्रीज होता है। इसका एक और रीजन भी ये है जो बुक्स मोस्टली मेंशन करते हैं कि नेब स्कोर और लैब स्कोर, लिकोसाइट अल्कलाइन फास्फेटेज और न्यूट्रोफिलिक अल्कलाइन फास्फेटेज स्कोर डिक्रीज होता है, इसलिए कि जो लिकोसाइट अल्कलाइन फास्फेटेज है इसके जीन क्रोमोसोम नंबर 21 पे मौजूद है। अब BCR-ABL चूंकि क्रोमोसोम नंबर 22 पे है इसलिए ये BCR-ABL जीन क्रोमोसोम नंबर 21 पे मौजूद नेप जो स्कोर है, नेप जो एंजाइम है उसको सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से नेप स्कोर डिक्रीज आ जाता है। सीरम LDH लेवल एलिवेटेड होता है और कैल्शियम लेवल भी इंक्रीज है बिकॉज ऑफ द बोन रिजॉर्प्शन। Now these are immunological markers which is usually positive in case of female, लेकिन मोस्टली इसकी जरूरत पेश नहीं आती। क्रोमोसोमल एनालिसिस, Philadelphia chromosome will be positive and BCR-ABL gene will also be positive in case of chronic myeloid leukemia. Now leukemia reaction. Leukemia reaction basically एक benign condition है जिसमें white blood cell की काउंट बहुत ही ज्यादा हो जाती है और मोस्टली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ही सीवियर हो जाए तो TLC जो है वो 50,000, 40,000, इवन 60,000 तक पहुंच जाती है, इसलिए हम उसको कहते हैं ल्यूकेमाइड रिएक्शन यानी ल्यूकीमिया लाइक रिएक्शन, बट एक्चुअली दिस इज नॉट ल्यूकीमिया बिकॉज वी कैन डिफरेंशिएट ल्यूकेमाइड रिएक्शन फ्रॉम CML ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन फैक्टर आर कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे और इस बेस पे
टोटल ल्यूकोसाइट काउंट दोनों में इंक्रीज होते हैं। नाउ लिफ्ट शिफ्ट। लिफ्ट शिफ्ट हमने कहा कि ल्यूकेमाइड रिएक्शन में इनकम्प्लीट लिफ्ट शिफ्ट होगा, जबकि CML में कंप्लीट लिफ्ट शिफ्ट होता है। फिर इसके बाद टॉक्सिक ग्रेनुलेशन। So toxic granulation is usually present in leukemide reaction, while in CML case toxic granulation नहीं होती बल्कि hypogranulation होती है। अनीमिया, मोस्टली ल्यूकेमाइड रिएक्शन में अनीमिया एब्सेंट होता है या स्लाइट होता है, लेकिन जब भी CML प्रोग्रेस करता है तो उसमें अनीमिया मौजूद होता है। फिर इजिनोफिल और बेसोफिल। इजिनोफिल और बेसोफिल यूजुअली नॉर्मल टू डिक्रीज होते हैं। चूंकि न्यूट्रोफिल का काउंट इतना ज्यादा होता है कि ये हमें डिक्रीज नजर आते हैं, लेकिन CML में ये दोनों इंक्रीज होते हैं। प्लेटलेट काउंट नॉर्मल आर इन सम केसेस इंक्रीज, लेकिन CML में मोस्टली क्रॉनिक फेज में प्लेटलेट काउंट इंक्रीज होते हैं। बोन मैरो हाइपरप्लेजिया लेकिन कम, जबकि यहां पर मार्क्ड हाइपरप्लेजिया होता है। 10:1 रेशो उसकी रेशो होती है। क्लिनिकल फीचर्स में क्लिनिकल फीचर में मोस्टली इसमें सिर्फ और सिर्फ फीवर होता है, जबकि CML के केसेस में स्प्लीनोमेगेली, लिम्फेडिनोपैथी कॉमन नहीं है, लेकिन स्प्लीनोहेपेटोमेगेली कॉमन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग नेप स्कोर। नेप स्कोर इसमें इंक्रीज है। न्यूट्रोफिलिक अल्कलाइन फॉस्फेटेज चूंकि ये ग्रेन्यूल्स में पाया जाता है और इसमें ल्यूकेमाइड रिएक्शन में टॉक्सिक ग्रेनुलेशन होती है, इसीलिए ये इंक्रीज होता है। चूंकि यहां पर हाइपर ग्रेनुलेशन है, इसलिए नेप स्कोर डिक्रीज होता है। एटॉप्सी जरूरत पेश नहीं आती, लेकिन जब भी हम कोई भी टिश्यू से बायोप्सी या एटॉप्सी उसकी लेते हैं, मोस्टली एटॉप्सी, तो इन्फिल्ट्रेशन इतनी नहीं होती, जबकि ल्यूकीमिक जो सेल्स है वो इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं इन केस ऑफ CML में। ये टॉक्सिक ग्रेनुलेशन है। अगर हम देखें तो इसमें जो ग्रेनुल्स हैं वो मोटे मोटे नजर आ रहे हैं। इसी तरह इसमें, और इसमें मोस्टली न्यूट्रोफिल्स हैं। ये एक लिम्फोसाइट है और ये मोनोसाइट है, ये भी मोनोसाइट है। क्योंकि इसमें मेजोरिटी में हमें सिर्फ न्यूट्रोफिल नजर आ रहे हैं, जबकि इसमें लिफ्ट शिफ्ट नजर नहीं आ रही, यानी माइलोसाइट, बैंड सेल, मेटामाइलोसाइट, इसलिए ये ल्यूकेमाइड रिएक्शन का स्लाइड है। थैंक यू सो मच।